Hello students, I am Rajeshri ma'am and you are watching my channel English Guidance for School Children. Today I am going to explain a lesson Sarojini Naidu from the book Focus Class 7th. The language of this chapter is easy, you can easily understand. Still I am explaining something to you uh, mostly in English and also in Hindi. Uh, Sarojini Naidu, one of the India's most loved and admired daughters, was born on 13 February 1879 in Hyderabad. Sarojini Naidu was one of the most loved and admired daughters. सबसे ज़्यादा वो प्यारी थी इंडिया की डॉटर्स में से सबसे ज़्यादा loved and admired thi. Why? Because she was extraordinarily talented and she was a great poet. She was the first woman president of Indian National Congress. तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, इसीलिए उनको सब कोई बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे. She was the eldest of 8 siblings and grew up in a house that was always open to scholars and artists. She was from a family which was an enlightened family, जहाँ पे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट लोगों का आना जाना था और उनको वेरी नेचुरली उनको एक अच्छा माहौल मिला था बचपन से ही. सरोजिनी नायडू's parents Aghornath Chattopadhyay and Baroda Sundari Devi held progressive views. At that time, when Sarojini Naidu was born 1879, that means it was 19th century. That time, people of India were very conservative. और उस समय के लोग बहुत रूढ़िवादी होते थे. वुमेन चाइल्ड को उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता था और उन लोगों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, पर्दा के अंदर रखा जाता था. बट एट दैट टाइम हर पेरेंट्स वर वेरी मच प्रोग्रेसिव. वो लोग लिबरल थे, आगे बढ़ना चाहते थे. तो इसी अघोरनाथ वॉज अ साइंटिस्ट एंड स्कॉलर वाइल बरोदा सुंदरी वॉज अ वेल नोन पोएट. उनके फादर जो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे साइंटिस्ट एंड स्कॉलर और उनकी माँ एक पोएट थी बरोदा सुंदरी. इट वॉज वेरी अनयूजुअल टू बी अ पोएट एट द टाइम फॉर अ वोमन. It is therefore not surprising that Sarojini Naidu and her siblings were extraordinarily gifted. Her parents both were very much talented. बहुत ज़्यादा talented थे और इसीलिए सरोजिनी नायडू और उनके siblings, that means her brothers and sisters, all were very much talented or gifted. Gifted means talented. Virendranath Chattopadhyay, Sarojini's brother, was a revolutionary. Revolutionary, that means who wanted to change the world, because at that time our India was under a tyrannical rule of the British government. उस समय हमारे देश एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का अत्याचारी ब्रिटिश के अंडर में था, जो लोग हम लोगों को बहुत तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, हम लोग के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे. At that time, her brother was a revolutionary, wanted to change this situation, this world. Another brother, Harindranath Chattopadhyay, was a poet, a dramatist, an actor, a musician, and a member of the first Lok Sabha. Harindranath Chattopadhyay was her another brother who was also multi-talented. He was a dramatist, an actor, and a musician, and also a politician, member of first Lok Sabha. लोक सभा के मेंबर भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, म्यूजिशियन भी थे. His poems continue to delight children even today, and he used to write poems which were for the children. बच्चे उनके पोएम बहुत पसंद करते हैं आज भी. Sarojini too started writing poetry as a young girl. Aghornath, who was the principal of the Nizam's College in Hyderabad, wanted Sarojini to become a mathematician or a scientist.
that अघोरनाथ, his father wanted her to be a mathematician or a scientist. वो खुद एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए वो चाहते थे कि सरोजिनी भी एक मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट बने. However, by the age of 12, she had already written a play, Maher Munir, in Persian and earned acclaim. लेकिन वो 12 साल के उम्र तक एक ठो बहुत अच्छा प्ले नाटक लिखी थी, माहिर मुनीर, पर्शियन भाषा में. इट वॉज इन पर्शियन लैंग्वेज एंड अर्नड एक्लेम. दैट मीन्स इट वॉज वेरी मच प्रेज्ड. एक्लेम्ड मीन्स प्रेज्ड. शी won a scholarship at the age of 16 from the Nizam of Hyderabad for her brilliance in poetry writing. और सिर्फ 16 साल की उम्र में she got scholarship from the Nizam. Nizam means the king of Hyderabad. She got a scholarship. इतना सुंदर वो पोइट्री लिखती थी, वो सुन के उनको स्कॉलरशिप दिया गया. The scholarship enabled her to travel to England to study first at King's College London and later at Girton College University of Cambridge. और वो स्कॉलरशिप पाके उसी पैसे से वो इंग्लैंड गई पढ़ने के लिए किंग्स कॉलेज में लंदन में, और बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंडर में गर्टन कॉलेज था, उसमें पढ़ाई की. There she met famous writers of her time such as Arthur Symons and Edmund Gosse. It was the latter who convinced her to use Indian themes in her poetry. उन्होंने दो फेमस राइटर के साथ मिला उस समय, आर्थर साइमंस एंड एडमंड गोस. और latter, that means the second one. When there are reference of two people or two things, the second one is called latter, Latter, latter. Don't confuse it with later, Later, later. तो जो बाद में जिनके बारे में कहा गया एडमंड गॉस, उन्होंने उनको सरोजिनी को सजेस्ट किया, कन्विंस किया कि तुम इंडियन थीम के ऊपर लिखो. You should write. So he asked her to write on the Indian themes. After completing her studies, Sarojini Naidu came back to India and married Dr. Govinda Rajulu Naidu, a physician whom she had met in London. पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया आके डॉक्टर गोविंदा राजुलू नायडू से शादी की. who was a physician means doctor, and उनके साथ लंदन में मुलाकात हुई थी. In time, Dr. Govinda Rajulu and Sarojini had 4 children and the family shared a very close bond. Here are some questions. When did Sarojini Naidu start to write poetry? When Sarojini Naidu started to write poetry at a very young age. In which language did Sarojini Naidu write Maher Munir? Sarojini Naidu wrote Maher Munir in Persian language. Who was Dr. Govinda Rajalu Naidu? Dr. Govinda Rajalu Naidu was the husband of Sarojini Naidu, and he was a physician and whom Sarojini met in London. By 1905, the freedom struggle against the British had gained momentum in India. 1905 में फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पीक पे पहुंच गया था इंडिया में. Gained momentum, that means it reached the peak. Deeply affected by the partition of Bengal in 1905, Sarojini decided to join the Indian freedom struggle. Actually, our country had been divided in 1947 in 2 parts, Pakistan and India. But the British had wanted it to divide in 1905 also, in the earlier. मैंने हमारा देश 1947 में हमारे देश को टुकड़ा किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया. लेकिन ये प्लानिंग बहुत पहले से ही ब्रिटिश लोग चाहते थे, करना चाहते, ब्रिटिश लोगों के मन में था.
they had also tried to divide Bengal in 1905, क्योंकि बंगाल में उस समय बहुत ज़ोर शोर से फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। तो ब्रिटिश लोग चाह रहे थे कि ये लोग को 2 हिस्से में बांट दिया जाए, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल वीक हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग पार्टीशन करने का कोशिश किए थे। बट एट दैट टाइम many revolutionaries had fought against this partition। ये पार्टीशन के खिलाफ बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज उस समय लड़ाई की और वो ब्रिटिश लोगों को बंद करना पड़ा। सरोजिनी Naidu decided to join the Indian freedom struggle. At that time, Sarojini had also joined freedom struggle. Her meeting with Mahatma Gandhi inspired her to help women awaken to the role they could play in the freedom struggle. तो उन्होंने जब महात्मा गांधी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, when she met him, that it inspired her to help women। उस समय वो बाकी इंडियन वीमेन को हेल्प करने के लिए इंस्पायर्ड हुई। सरोजिनी came from an affluent family, yet this did not deter her from helping her fellow sisters in the country. Sarojini Naidu was from a affluent, that means wealthy family, yet this did not deter her, that means keep her away। लेकिन वो एक बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी उन्होंने अपने देश के दूसरे महिलाओं को मदद करने से नहीं चूकी, क्योंकि उनको तो कोई ज़रूरत नहीं था। वो तो खुद तो एक अच्छा एफ्लुएंट फैमिली से थी और वो लोग प्रोग्रेसिव भी थे, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन बाकी हमारे देश के 99% महिलाओं को ये सब उस समय नसीब नहीं होता था। तो इसीलिए सरोजिनी नायडू खाली अपने बारे में नहीं सोची, उन्होंने अपने फेलो सिस्टर्स के बारे में, मतलब अपने देश के दूसरे महिलाओं के बारे में भी उन्होंने सोचा और उन्होंने हेल्प करना शुरू किया। शी ट्रैवल्ड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड वर्क फॉर द एजुकेशन एंड एमेंसिपेशन ऑफ वीमेन। तो इसीलिए उन्होंने स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना शुरू किया और वीमेन को लिबर्टी देने के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीइंग वीमेन फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन। जो रेस्ट्रिक्शन था उसमें से उन्होंने वीमेन को लिबर्टी देने के लिए उन्होंने काम किया। इन वन ऑफ हर फायरी स्पीचेस शी सेड, एज लॉन्ग एज आई हैव लाइफ, एज लॉन्ग एज ब्लड flows through this arm of mine, I shall not leave the cause of freedom। One of her fiery speeches, that means very energetic speech, बहुत ज़्यादा energetic speech में उन्होंने क्या कहा, as long as I have life, जब तक मेरी जान है, as long as blood flows through this arm of mine, जब तक मेरे शरीर से ये ब्लड फ्लो कर रहा है, I shall not leave the cause of freedom, और मैं ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं छोड़ूंगी। Come my general, come my soldiers, I am only a woman with only a poet। मेरे जनरल, मेरे सोल्जर्स आओ, मैं सिर्फ एक वुमन हूँ, एक पोएट हूँ। बट एज अ वुमन आई गिव टू यू द वेपन्स ऑफ फेथ एंड करेज। लेकिन वुमन होने के साथ साथ मैं आप लोगों को फेथ और करेज का वेपन दे रही हूँ। ये शक्ति, विश्वास का शक्ति, हिम्मत का शक्ति मैं दे रही हूँ। द शील्ड ऑफ फोर्टिट्यूड, जो लड़ने के लिए ताकत मैं आप लोगों को दे रही हूँ। शील्ड ऑफ फोर्टिट्यूड मतलब वेपन ऑफ करेज अगेंस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टीज। पेन और डिफ़िकल्टीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ताकत दे रही हूँ। एंड एज अ पोएट आई फ्लिंग आउट द बैनर ऑफ सॉन्ग एंड साउंड ऑफ बीगल कॉल टू बैटल। और मैं एक पोएट होने के नाते मेरा बैनर ऑफ सॉन्ग जो है उसको मैं छोड़ के मैं साउंड ऑफ ब्यूगल कॉल, ब्यूगल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ प्लेड इन द बैटल फील्ड। ब्यूगल का जो आवाज़, ब्यूगल एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके आवाज़ से लोगों को हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है, अंदर से एक तो जोश मिलता है। तो दैट इज़ वाई शी सेड
दैट मैं अपना सॉन्ग को छोड़ के ब्यूगल कॉल को दे रही हूँ। जैसे बैटल फील्ड में ब्यूगल बजाया जाता है, मैं वैसे ही बजा रही हूँ। हाउ शैल आई किंडल द फ्लेम वी शैल वेकन यू मेन फ्रॉम स्लेवरी। मैं कैसे वो फ्लेम जला रही हूँ, वो आग जला रही हूँ ताकि आप लोगों को स्लेवरी से मुक्ति मिले। Gopal Krishna Gokhale once told her, use your poetry and your beautiful words to rejuvenate the spirit of independence. Gopal Krishna Gokhale, he was also a renowned freedom fighter of Maharashtra, and he suggested Sarojini Naidu कि use your poetry, तुम अपना poetry को use करो, and your beautiful words, आपका जो ये आवाज़ वर्ड्स जो है उसको सब उसी से सबको रिजुविनेट करो, दैट मीन्स एनर्जाइज करो, ताकत दो, द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, ताकि सबको स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस मिले। यूज योर टैलेंट टू फ्री मदर इंडिया। एनकरेज बाई गोखले, Sarojini wrote poems that drove Indians to fight for their freedom and to restore the country's past glory. गोखले से एनकरेज होने के बाद सरोजिनी नायडू और भी पोएम्स लिखना शुरू की, ताकि जिससे कि लोगों को अपने पास्ट ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए ताकत मिले। These lines from the poem To India express her deep love for her country. To India नाम का एक पोएम से पता चलता है कि वो कितना अपने कंट्री से प्यार करती थी। Thy future calls thee with a manifold sound to crescent honors, splendors, victories vast. Thy future, that means your future. Thy is an old English language which means your. Thy future calls thee. Thee means you. तुम्हारा फ्यूचर तुमको कॉल कर रहा है। विथ अ मैनीफोल्ड साउंड, तरह तरह से। मैनीफोल्ड मीन्स मोर देन वन। टू क्रेसेंट ऑनर्स, क्रेसेंट मीन्स एक्चुअली क्रेसेंट मून होता है बढ़ता हुआ, जैसे मून एक फोर्टनाइट के शुरू में छोटा होते होते फिर बड़ा होता है, तो ऐसे ही क्रेसेंट ऑनर्स, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ऑनर्स। इंक्रीजिंग फेम, स्प्लेंडर्स, विक्ट्रीज वास्ट, जो स्प्लेंडर्स विक्ट्रीज वास्ट जो आने वाला है वही तुमको कॉल कर रहा है। द दाई फ्यूचर, दैट इज़ योर फ्यूचर। वेकन ओ स्लम्बरिंग मदर एंड बी क्राउन। स्लीपिंग, स्लम्बरिंग मीन्स स्लीपिंग मदर, वेक अप, उठ जाओ, जागो, एंड बी क्राउंड, और अपना ये ऑनर को ले लो अपने हाथ बढ़ा के। हु वंस वर्ड एम्प्रेस ऑफ द सॉवरेन पास्ट, जो एम्प्रेस पहले एक किसी समय एम्प्रेस थी। आवर इंडिया वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेल्दी इन द पास्ट, और फिर से वही होने जा रहा है। दैट आवर इंडिया वॉज गोइंग टू बी wealthy again, and she was calling her mother India to wake up and get that honor. Her first volume of poems, The Golden Threshold, was followed by The Birds of Time, The Broken Wing, and many others. ये सब उनकी लिखी हुई बुक्स है, बुक्स ऑफ पोएम्स। Besides exhorting Indians to fight for freedom, her poems also describe India's flora and fauna, culture and traditions, its festivals and legends. खाली इंडियंस का स्ट्रांगली इनकरेजिंग जो पोएम्स है इंडियन के प्रति, वो छोड़ के भी उन्होंने ऐसे भी बहुत सारे कविताएं लिखी जिसमें कि इंडिया का जो ट्रेडिशन, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, दैट मीन्स यहाँ के जो इंसान बोलो, यहाँ का पेड़ पौधा, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया। फेस्टिवल्स, पोएम्स लाइक इमाम बड़ा, द सोल्स ऑफ प्रेयर, पोर्ट्रे हर स्पिरिचुअल लीनिंग्स। स्पिरिचुअल दैट मीन्स धार्मिक, रिलीजियस
जो उनका पोएम था वो है इमाम बड़ा द सोल्स प्रेयर. While poems like the Palanquin Bearers, the Bengal Sellers have a lyrical quality as seen is in these lines. ये जो है ये Palanquin Bearers और Bengal Sellers have lyrical quality. वो अपने नज़र से उन्होंने देखा था इंडियन कल्चर को. Bengal Sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. उन्होंने एक कविता लिखा था बैंगल सेलर्स, जो चूड़ी बेचते हैं ना उन लोगों के बारे में. तो वो लोग तो उन्होंने उसकी खूबसूरती जो है द ब्यूटी ऑफ द बैंगल्स वर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, बैंगल्स एंड द बैंगल सेलर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बैंगल सेलर्स को बोल रहे हैं कि आर वी, बैंगल सेलर्स कह रहा है कि हम लोग ये खूबसूरत लोड्स, शाइनिंग लोड्स हम लोग मंदिर के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास महिलाएं जो आती थी वो बैंगल्स पहनती थी. हु विल बाई दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट. और वो लोग जोर जोर से आवाज़ दे के पुकारते हैं ना औरतों को कि आइए आइए, कौन आप लोग चूड़ी पहनना चाहते हैं. तो यही हु विल बाई दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट. जैसे कि ये रेनबो के तरह, उसका बहुत तरह के कलर्स होते हैं चूड़ियों के, तो सर्कल ऑफ लाइट कौन खरीदेगा. आइए आइए. हु इज सरोजिनी नायडू कॉलिंग आउट टू इन द लाइन्स कम माई जनरल कम माई सोल्जर्स. द सरोजिनी नायडू इज कॉलिंग आउट द फ्रीडम फाइटर्स हियर. What impact did the partition of Bengal in 1905 have on Sarojini Naidu? The impact of the partition of Bengal in 1905 had impacted Sarojini Naidu, and she joined freedom struggle at that time. What did Sarojini Naidu's meeting with Mahatma Gandhi inspire her to do? Sarojini Naidu's meeting with Mahatma Gandhi inspired her to work for Indian women. What did Gopal Krishna Gokhale once tell Sarojini Naidu? Gopal Krishna Gokhale once told Sarojini Naidu to use her poetry to rejuvenate the fellow Indians. In 1925, Sarojini Naidu became the first Indian woman and only the second after the British social reformer Annie Besant. वही पहले बार इंडियन वुमन होके कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी, जो कि इसके पहले सिर्फ एनी बेसेंट वहाँ पे वुमन थी, जो कि एक यूरोपियन थी, वो बनी थी. In 1930, she went to jail for the first time, an experience that she relived several times in later years. और फ्रीडम फाइटिंग के चलते, क्योंकि फ्रीडम फाइटिंग करना तो उस समय कानूनी तौर पे तो फॉरबिडन था, मना था, क्योंकि हम लोग तो वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, हम लोग ब्रिटिश लोग के अंडर थे और उन लोगों के खिलाफ लड़ाई करना तब तो गैर कानूनी था. इसीलिए 1930 में उनको जेल में डाला गया. एंड विच शी रिलाइव्ड सेवरल टाइम्स, दैट मीन्स उसके बाद भी वो बहुत बार जेल गई. शी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन 1931 एंड शी अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी. और 1930 में वो फिर से उनको प्रिजन से रिलीज़ किया गया एंड वो लंदन में महात्मा गांधी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई थी. Her role was that of a representative of women of India, of the women of India. और वो इंडियन वीमेन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पर गई थी. She was arrested again in 1932 and then in 1942. 2 बार वो फिर से जेल गई. This time she remained in prison for 21 months. 21 months के लिए वो प्रिजन में रही. Throughout her life, Sarojini remained an active champion of the women of our country,
fighting for their rights, eager to break their bondage of orthodoxy and ignorance. और हर वो बहुत सालों तक वो हमारे देश में विमेन के लिए काम की और ट्राई टू ब्रेक देयर बॉन्डेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, दैट मीन्स द चेन्स ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड लैक ऑफ नॉलेज। ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है कि कंजर्वेटिज्म माने पुराना रूढ़िवादी सोच जो कि आगे बढ़ने नहीं देता है, तो उन्होंने उसको ब्रेक करने का कोशिश किया। शी एड्रेस्ड वीमेंस ग्रुप्स ऑन इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिज, द सिस्टम ऑफ पर्दा, बाइगमी एंड विडो इमोलेशन। उस समय क्या क्या वीमेन के खिलाफ होता था? चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों को शादी करा दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था। द सिस्टम ऑफ पर्दा, उन लोगों को पर्दे के पीछे, अंडर द वेल, दे वर केप्ट अंडर द वेल, पर्दे के पीछे रखा जाता था। बाइगैमी, दैट मीन्स एक पुरुष एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे। और विडो इमोलेशन, और कभी कभी विधवाओं को जला दिया जाता था उसके पति के चिता में। उस सब के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया। सरोजिनी नायडू became the first woman governor of independent India and served as the governor of the United Provinces of Agra and Awadh, now Uttar Pradesh, from 1947 till her death in 1949। वो पहले गवर्नर बनी, उसके बाद वो यूनाइटेड आगरा में और अवध जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे उन्होंने गवर्नर बना और 1949 में उनका डेथ हुआ। शी वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1914। रॉयल सोसाइटी का उनको मेंबर बनाया गया 1914 में। टुडे शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एज वेल एज हर ब्रिलियंट पोइट्री। अभी तक उनको एक अच्छे फ्रीडम फाइटर के हिसाब से और एक पोएट के हिसाब से याद किया जाता है। शी इज़ रिमेंबर्ड एज अ पोएट एंड एज अ फ्रीडम फाइटर। शी केम टू बी नोन एज द भारतीय कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हर बर्थडे 13 February is celebrated as Women's Day in our country. In which year did Sarojini Naidu become the first Indian woman to hold the post of the President of the Indian National Congress? In 1925, she became the first Indian woman to hold the post of the President of the Indian National Congress. Which conference did Sarojini Naidu attend with Mahatma Gandhi? Sarojini Naidu attended the round table conference with Mahatma Gandhi. Name two issues about Sarojini Naidu spoke to the women of India. Sarojini Naidu spoke against bigamy and widow immolation. There is no doubt that Sarojini Naidu was a child prodigy. Child prodigy, prodigy means extraordinarily talented. और बचपन में ही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड थी। अ गिफ्टेड पोएट, अ लविंग वाइफ एंड मदर, अ डेडिकेटेड फ्रीडम फाइटर, अ सोशल रिफॉर्मर, अ स्किल्ड ओरेटर, ओरेटर मीन्स पब्लिक स्पीकर, एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो हर तरह से शी वॉज a great talented woman. So this is the explanation of this chapter, and if you want to ask anything, students, you can ask it in the comment box. Thank you.